Assalamu alaikum. My name is Nancy Raza and I am from Al Mursa School Senior Boys Branch. We were discussing our unit number 3 and today is our lesson number 4. In our previous lessons, we were discussed about invertebrates, their different varieties. We have discussed, so far we have discussed about without jointed leg organisms, without jointed leg non-worm-like organisms from invertebrates. We have already discussed the phylum Protozoa, and in our further lessons, we are going to discuss porous organisms and the jelly-like organisms. So these two are our today's topic. We have discussed phylum Protozoa. In the phylum Protozoa, unicellular organisms were there, and we have discussed their 4 examples: amoeba, paramecium, euglena, and chlamydomonas. So today is our lesson number 4 and we are going to discuss the phylum Porifera. So let's start our lesson. Study of phylum Porifera, as the diagram is showing you. Pori means pores or porous. So Porifera is a phylum which has a group of organisms which has porous body. So the poriferans are porous organisms जिनकी बॉडी में बहुत सारे सुराख या छेद होते हैं. Example are sponges. So, phylum, the characteristics of sponge. Sponge is a living thing. It is an organism. Mostly हम उसको देख के समझते हैं वो स्पॉन्ज नहीं जो आपके घरों में लाइक स्कॉच ब्राइट के साथ होता है या बॉडी स्पंज होता है. This is a sponge which found inside the water. They are exclusively aquatic organism. ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं. और ये जो हमारे पास सिंथेटिक स्पंज होता है लाइक द फेस पाउडर स्पंज और आपका स्कॉच ब्राइट का स्पंज, these all are the synthetic ones. ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं बट और इनका आइडिया अल्लाह ताला की बनाई हुई स्पंज से ही आया है लोगों को. Another creature that is SpongeBob, एक कार्टून आता है आपके पास, ये भी इसी स्पंज ऑर्गेनिज्म से इंस्पायर होकर वो कैरेक्टर बनाया गया है. Dear students, we have a faith that Allah said kun fayakun और दुनिया बन गई थी. But scientists have various theories about the earth and the organization of organisms. के organisms कैसे बने थे? Scientists का इसके बारे में different theories हैं. The one theory says that सबसे पहले organisms unicellular थे यानी प्रोटोजोआ थे और उसके बाद वो कंबाइन हुए तो उन्होंने पोरीफेरा यानी स्पंजेस को बनाया. So scientists believe that sponges has been evolved या स्पंजेस जो है वो अमीबा से बने हैं. एज अ मुस्लिम वी हैव बिलीव कि अल्लाह ताला ने कुन फयाकुन कहा था और सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए थे. So but science says that poriferans are existing from the phylum Protozoa. In phylum Porifera, the general characteristics are they are multicellular. ठीक है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर था बट नाउ दे आर मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म. सिंपल ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये कि इनके अंदर ना प्रॉपर ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, जस्ट पोरली डेवलप्ड टिश्यूज हैं. पोरली डेवलप्ड टिश्यूज मींस टिश्यूज जो है वो सही से डेवलप नहीं है, बस सेल्स एक जगह अरेंज हो गए और मल्टी सेलुलर बन गए. दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं एंड दे ऑल आर मोस्टली सिजाइल. ये ज्यादातर सिजाइल होते हैं यानी कि मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल होते हैं. Their body contain numerous pores. इनकी बॉडी में बहुत सारे सुराख होते हैं. The small pores called ostia and the larger pore at the upper end of body is called ossiculum. Ossiculum एक मेन गेट है जिससे पानी इनकी बॉडी में एंटर होता है. ये सबसे बड़ा इनकी बॉडी में सुराख होता है. And the ostia is the smaller one. ये छोटे छोटे होते हैं. They don't have proper organ system, even tissues भी proper develop नहीं होते. पानी के अंदर रहते हैं तो पानी में से ही ये अपना खाना ले लेते हैं एंड पानी में ही अपना वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपेल कर देते हैं. So digestion, excretion, respiration take place by body surface. How? ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है.
Look at the diagram. In this one is the real diagram and this one is the real picture and this is a diagram. ये this is the ossiculum. ये and जो ये pore जो सबसे बड़ा है, this is ossiculum and these smaller are the ostia. ये सिजाइल होते हैं, हिलते झुलते तो है नहीं, पानी के अंदर ये हमेशा पानी में डूबे हुए होते हैं. वाटर एंटर होता है ऑसिक्यूलम से और बॉडी के सारे सेल्स वेस्ट प्रोडक्ट पानी में छोड़ देते हैं और फूड अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. इस तरह से दे परफॉर्म देयर बॉडी. सो यू कैन सी दैट इनकी बॉडी में कैविटी होता है, एक होल होता है, सुराख होता है, इसलिए इसमें पानी अंदर एंटर हो जाता है और ये अंदर से खोखले होते हैं, बिल्कुल हॉलो होते हैं. पानी अंदर एंटर होता है और अंदर एंटर होने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल टेक प्लेस और ये पानी ऑस्टिया के जरिए बाहर निकल जाता है. सो दीज आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स. इनके अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है. cells are arranged in tissues but no proper organ. इनके cells जो हैं वो बहुत simple type के होते हैं. They don't have any organ system. They remain inside the water. So the body contain of numerous pores. That's why they are called they are kept in the phylum Porifera, यानी pores वाले organisms. इन्हीं organisms से idea लेकर हमने अपने घरों में use होने वाले synthetic sponges को बनाया. बिकॉज ये स्पॉन्जेस, ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर बहुत सारा पानी स्टोर कर लेता है और फिर उसको बाहर निकाल देता है लाइक द स्पंज. सो दिस इज अवर सेकंड फाइलम. फाइलम प्रोटोजोआ वाज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बट फाइलम पोरीफेरा इज एडवांस्ड देन द प्रोटोजोआ. इनके अंदर एक सेल की जगह मल्टीपल सेल हैं और इनके मल्टीपल सेल्स जो है वो एक टिश्यू की फॉर्म में अरेंज हुए हैं. नाउ we are starting the third phylum. The name of phylum is phylum Colentrata. The Colentrata is a word that has been taken from the word colentron. Meaning is cavity. Colentron का मतलब होता है cavity. Cavity मतलब गड्ढा, गड्ढा, जगह. So the Colentrata has organisms which are cavity bearing. यानी cavity वाले organisms होते हैं इनके अंदर. Examples are jellyfish. इसकी example है आपके पास jellyfish. आपके पास पिक्चर में भी नजर आ रही है. अच्छा, jellyfish is also world's largest known organism और they are called immortal. ये मरती नहीं है, इनकी बॉडी जो है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाती है. सेम एज स्पंजेस, वो भी पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. बट जेलीफिश की अब तक की सबसे ज्यादा नोन लाइफ है, मीन सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट क्रिएचर में कंसीडर किए जाते हैं ये. सो द फाइलम Colentrata, एग्जांपल इज जेलीफिश. दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. दिस फाइलम आल्सो हैज ऑल द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स. ये सब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? दे हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ये पोरीफेरा से थोड़े से एडवांस है. They have complex tissue and tissues are arranged in 2 layers. Tissues जो है वो 2 layers में arrange हो जाते हैं जिसकी वजह से एक cavity बन जाती है. So एक colentron बन जाता है and that cavity is filled with a jelly-like substance. होता क्या है कि इनके tissues 2 layers में arrange होते हैं और arrangement की वजह से बीच में एक cavity बन जाती है और इस cavity के अंदर jelly जैसा substance fill हो जाता है. In the body is soft, tendril and umbrella-like. Jellyfish की body बहुत soft होती है. आपने beaches पे jellyfishes देखी होंगी अक्सर. ये बहुत soft होती हैं, बहुत tendril होती हैं, umbrella-like body होती है. Elongated thread-like tentacles. इनके umbrella-like structure के नीचे से धागे जैसे लंबे लंबे fine structures hang कर रहे होते हैं जो tentacles कहलाते हैं. इन tentacles की वजह से ये अपना खाना trap कर सकते हैं. So this is a jellyfish. You can see कि they have a jelly-like structure inside their body. Transparent होती है इनकी body and these are the tentacles. You can see tentacles. In tentacles में आप देख सकते हैं कि fishes are trapped over here. So jellyfishes are found in the sea. ये free floating sea के अंदर पाई जाती हैं. Umbrella-like body होती है, thread-like tentacles होते हैं. बॉडी के अंदर कैविटी यानी कोलेंट्रॉन होती है. जेलीफिशेस आर सबसे
कम एडवांस थे, सबसे प्रिमिटिव थे प्रोटोजोआ, उनसे थोड़े से एडवांस थे पॉरीफेरा यानी स्पंज, और जेलीफिश इन दोनों से एडवांस है क्योंकि इनकी बॉडी में 2 लेयर्स प्रेजेंट है, 2 लेयर ऑफ टिश्यू डेवलप हो गई है, साथ में एक कैविटी भी डेवलप हो गई है। जेलीफिश की एक टाइप होती है जो हमारे बीच में बहुत कॉमन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लू फिश और ब्लू जेलीफिश। ये ब्लू कलर की होती है, बिल्कुल आपके सामने पिक्चर जैसी है इस तरह की, ये बीच में पड़ी होती है। प्लीज प्लीज डोंट गो नियर टू इट क्योंकि उसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में चुभ जाते हैं, आपको फीवर हो सकता है, आपको पेन हो सकता है। तो जेलीफिश में भी ऐसे स्टिंकिंग सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चुभ सकते हैं, प्रिकी होते हैं और तकलीफ दे सकते हैं। दिस वाज आवर today's learning, and you have assignment question number 4a. You have to describe the characteristics of following organisms: jellyfish and sponge. Be careful that your answers must contain diagram of the organism. आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं, आप स्लाइड पे बनी हुई डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं. यू मस्ट हैव डायग्राम इन योर कॉपी, बिकॉज पेपर में हम डायग्राम से ही आपको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे. I hope so. Okay, today you have enjoyed your lesson and it is useful for you. You can use this part of chapter is not included in the book, so you can use your PowerPoint presentation as a source for making the notes. It's Nazia Raza signing off from Science Classroom. Take care of yourself. Stay safe. Allah Hafiz.